Students, in the last video we have seen the vehicle on the horizontal circular track. We find out the velocity V maximum, it is equal to under root mu rg. In that case, that frictional force balance the centripetal force. Okay, but if frictional force becomes zero, then what happened? Then no centripetal force. Therefore, no circular motion. For that we bank the road. Banking of road means if we incline the road like this by some angle theta. Okay. Whenever that road is banked, it is called as a vehicle on the bank road. We find out the expression for the velocity with which the vehicle is traveled on the bank road. Okay. Now see here, there are three cases. If frictional force 0, case 1, if frictional force 0, then find out the velocity with which that vehicle travel on the bank road. For that, suppose this is a circular track and on the circular track road is banked like this. Banking of road means what? ये आपका horizontal road है, इसको slightly tilt किया है outer side से by certain angle theta. This angle is called as a banking angle. Okay, this diagram is very important. By using this we can find out the expression for the velocity on a bank road. Okay, now see here, this is a circular track. ये डायग्राम मैं आपको फिर से निकाल के बता रही हूँ. Suppose this is a horizontal road and this track is a circular track like this. Road is banked by certain angle, suppose theta, and this is a car which is taking turn on a bank road. Okay, now see here, whenever this we study first of all what are those forces acting on this vehicle. This is a car, weight of the car which is acting in a downward direction, that is m into g. Okay, at the same time the normal reaction which is acting, which is perpendicular to this bank road. ये bank portion जो है उसको perpendicular, ये होगी normal reaction n. Okay, now this angle is theta, this is the normal reaction, this is m into g. Here we consider for frictional force F, it is equal to 0. Frictional force F आपको यहाँ पे 0 लेना है. Now see here, ये जो भी inclined हो गया नॉर्मल का जो भी फोर्स है that is inclined हो गया, इसको रिजॉल्व करना पड़ता है in the x axis and y axis. तो आप कैसे करोगे? इसको अगर रिजॉल्व करना है आपको, इसको x एक्सिस और y एक्सिस में रिजॉल्व करेंगे. ठीक है, तो x एक्सिस एंड y एक्सिस में रिजॉल्व करते वक्त आपको थीटा एंगल यहाँ पर जैसे है वैसे एंगल थीटा इज फॉर्म ओवर हियर. अब ये कैसे आया ये आपको पता होना चाहिए. इसीलिए देखो, ये जो भी सेंटर ऑफ मास है ये बॉडी का, ये यहाँ रहो या यहाँ रहो, तो आप इसको रिजॉल्व कर सकते लाइक दिस. ये लाइन आप यहाँ कंसीडर कर सकते. सो ये जो भी ट्रायंगल बन गया इसका ये एंगल थीटा हो गया. ओके, अब ये एंगल 90 डिग्री है, सो ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा हो गया. ठीक है, समझे ना आपको? ये थीटा 90 माइनस थीटा और 90, बिकॉज थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 इट इज इक्वल टू 180 आना चाहिए. तो देखो थीटा थीटा कैंसिल हो गया तो ये 180 हो गया. सो 180 इज इक्वल टू 180. ओके, सो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया. तो यहाँ पर इसको अगर आप एक्सटेंड करते हो तो ये एंगल क्या हो जाएगा? ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 90, उसमें से 90 माइनस थीटा गया तो दिस एंगल इज अगेन थीटा. ये थीटा हो गया
तो इसके अपोजिट एंगल जो है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस एंगल इज थीटा. इज इट क्लियर टू यू? ये थीटा हो गया. तो नाउ वी रिजॉल्व दिस नॉर्मल रिएक्शन इन y एक्सिस एंड x एक्सिस. जो एक्सिस को लग के थीटा रहता है वो एक्सिस का कंपोनेंट कहा जाता है n cos थीटा, और दूसरा रहेगा n sin थीटा. ओके, अब यही डायग्राम बाकी का ना कुछ निकालते हुए अपन फिर से निकालेंगे. सपोज दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये आपका ट्रैक इंक्लाइंड ट्रैक हो गया थीटा, ये आपका व्हीकल है उसके ऊपर कार. अब ये नॉर्मल रिएक्शन का इसका काम नहीं है अपने को. एक वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा n cos थीटा, ये एक हॉरिजॉन्टल रहेगा n sin थीटा. ओके, ये वेट है व्हीकल का mg इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. इसकी डायरेक्शन लाइक दिस. ओके, इतना समझ में आ गया. आगे देखते हैं. नाउ सी हियर दिस n cos थीटा, n sin थीटा एंड mg. इतना इसका काम है अपने को. नाउ दिस n cos थीटा, इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, it balanced by the weight mg. So n cos theta balances mg. So we can write n cos theta is equal to mg. Suppose this is equation number 1 here. Then we know that this vehicle is taking circular path like this. Okay, so circular path है तो n cos theta it is balanced by the centripetal force. Circular ट्रैक है तो सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा, और ये n साइन थीटा इसको कौन बैलेंस कर रहा है? दैट इज n साइन थीटा प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स. सो n साइन थीटा इट इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r. आपको दो इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 1 एंड 2. नाउ डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय 1. दो सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे. क्या मिलेगा आपको? n साइन थीटा अपॉन n कॉस थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r. ये mg यहाँ रहेगा. ठीक है, यहाँ n कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया, r और g अपन इधर लेके आएंगे. सो rg साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इट इज इक्वल टू tan थीटा, इट इज इक्वल टू v स्क्वायर. v स्क्वायर इज इक्वल टू rg tan थीटा. सो v इज इक्वल टू rg tan थीटा. ओके, सो दिस v इज इक्वल टू under root rg tan theta. It is called as a safe speed. Safe speed, it is also called as a optimum speed with which that vehicle can take turn on a bank road whenever frictional force is 0. Okay, अब ये velocity तो अपने को पता हो गई, लेकिन थीटा एंगल, कौन से थीटा एंगल से ये व्हीकल इंक्लाइन होगा उसके लिए इसी के ऊपर से अपन फाइंड आउट कर सकते. दैट इज ये tan थीटा इट इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg हो गया. सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन rg. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द बैंकिंग एंगल. ओके, ये आपकी फर्स्ट केस होगी व्हेनेवर फ्रिक्शनल फोर्स इज 0, और उसके लिए आपको वेलोसिटी मिली v इज इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा. अब हर जगह पे यही वेलोसिटी से व्हीकल जाएगा और फ्रिक्शन एकदम 0 रहेगा, ऐसे सब केसेस पॉसिबल नहीं है. ये वेलोसिटी एक तो ज्यादा भी हो सकती या कम भी हो सकती. तो उसकी लिमिट क्या रहेगी? उसके लिए दो केसेस है. व्हेनेवर वेलोसिटी v इज लेस देन दिस फैक्टर, एंड सेकेंड केस जो रहेगी that is velocity is greater than rg tan theta. We will see the expression in the next video. Okay.